we are start the next point, the relationship of finance with other business functions. The first point is purchase function. The second point is production function. The third point is distribution function. Fourth point is account. Fifth point is function. Or last R&D function. R&D function stands for research and development function. Class mic off कर दो सारे। Ma'am, excuse me, we don't have your sound. We are start the point of the relationship of finance with other business functions. The first purchase, second production, third distribution, fourth accounting, fifth personal function, or last point is R&D, stand for research and development functions. We move the first point is purchase function. Purchase functions mean the procurement. Procurement means production. Procurement means deliver by purchase of the proper material, machinery, equipment, and supplies for stores and use in the manufactures of the product, adopt to marketing in the quality and quantity and proper time at the lowest price of the quality according to the customer desire. The second point is production function. Production function is the term of the accounting equation. The relationship shown between the production functions, the first one is capital and second one is labor. The production function is the most important role in the product. The third point is distribution function. Distribution functions means that the funds it is distributed around to the desire of the department. The fourth point is accounting functions. Accounting functions refer to the income statement, balance sheets, and find out the financial position of the business at the end of the accounting period. Let's suppose startup of the business point, the overall transaction is recorded in the books of accounts is maintained daily basis, and after 6 months or after 1 year the overall financial position of the business is checked out. The business is the maximum profit, minimum profit, maximum losses, and minimum losses. The next point is personal functions. Personal functions means refer to the communicates life, experience, emotions, or feelings of an individual base. The last point is research and development functions. Research and development functions include activities that companies undertake to innovate and introduce new product services. The first stage of the company into the development process. Research and development functions basically company introduce the new products and new launching and new innovations according to the customer need, according to the customer desire, and according to the customer demand. क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। मैम काफी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा दो। आप लोगों का वॉइस आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे मान लो
महमूद स्लाइड शेयर करो। कहाँ चली गई महमूद? महमूद स्लाइड शेयर करो बच्चे। क्लासेस से मैंने भी आप लोगों को बताया है कि हमारा परचेज फंक्शन है। हमारे पास परचेज फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चीजों को मैन्युफैक्चर करती है। कैसे चीजों को मैन्युफैक्चर करती है? अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी चीजों को बनाया जाता है। हमारा परचेज फंक्शन वो होता है जिससे हम चीजों को बनाते हैं। कैसी चीजों को बनाते हैं? जैसे सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। कौन सी प्रोडक्ट? हम मोबाइल फोन की प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने मोबाइल फोन जो है ना वो लॉन्च करना है। डेफिनेटली हम लोग ने इसकी क्वालिटी को भी देखना है और उसकी क्वांटिटी को भी देखना है। जो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड एंड वांट्स एंड डिमांड देखनी होती है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पहले मार्केट को एनालिसिस करना होता है, चीजों को देखना होता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कस्टमर जो है वो डिमांड कर रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसने चीजों को बनाना होता है। हमारे परचेज फंक्शन में क्या होता है? परचेज फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चीजों को मैन्युफैक्चर करती है और चीजों को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो हम लोग चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर हो और कस्टमर उस चीज से सेटिस्फाइड हो। और कस्टमर डेफिनेटली उस चीज से सेटिस्फाइड होगा, वो ये कहेगा कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो भी अच्छी हो और उसकी प्राइस भी जो है वो नॉर्मल हो। अब आप ऐसे एग्जांपल सपोज कर लो कि अगर हम मोबाइल फोन ले रहे हैं, ठीक है, हमारे मोबाइल फोन में डेफिनेटली जितनी हम लोग ज्यादा कॉस्ट लगाएंगे, जितनी हम लोग ज्यादा एक्सपेंसिव लेंगे, हमारे उसके अकॉर्डिंग ही फीचर्स ज्यादा होंगे मोबाइल से। अब जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल करंट एग्जांपल कर लो कि अगर हम लोग कोई जैसे हमारा वीवो है या सैमसंग है हमारा, क्या हमारे वो भी मोबाइल की प्राइसेस जो है वो ठीक चल रही हैं। अगर हम आईफोन के साथ इसको कंपेयर करें तो आईफोन वाली फीचर्स इनके अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये भी एक फोन है, वो भी एक फोन है। इसी तरह वो कहते हैं कि जब आप मार्केट में एज अ सर्वाइवर के तौर पे काम करते हो, अपनी कोई प्रोडक्ट बनाते हो, मार्केट में लेके जाते हो, उसको लॉन्च करते हो, तो आप लोगों ने क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ अपनी कॉस्ट को भी कंपेयर करना होता है कि कहीं आपकी कॉस्ट जो है वो मार्केट से या कस्टमर की डिजायर से नीड से अप तो नहीं जा रही कि कस्टमर की वहां तक जो है वो पहुंच ही नहीं और कस्टमर उसको कैसे बाय कर सकता है। दैट्स अ क्लियर पॉइंट क्लास? Yes, ma'am. Any question class? Any question class? डेफिनेटली हम जब तक उसको जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो हम चीजों को परचेज कैसे करेंगे? पहले फर्म ने उसको मैन्युफैक्चर करना है, देन हम लोगों ने उसको परचेज करना है। प्रोडक्शन में डेफिनेटली हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम चीजों को देखते हैं कि हम लोगों ने किस किस तरह से प्रोडक्शन करनी है, किस किस तरह से चीजों को बनाना है। लेकिन जो हमारा परचेज फंक्शन होता है हम उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को कंपेयर करते होते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें हम चीजों को बनाने के साथ साथ हम अपनी लेबर्स को भी देख रहे होते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट जिसको हम कैपिटल का नाम देते हैं उसको भी देख रहे होते हैं। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि प्रोडक्शन फंक्शन। लास्ट अभी आप लोगों को बताया कि इन इकोनॉमी इक्वेशंस दैट express the relationship between the quantities of production such as labor and capital used in the amount of the product, same like
प्रोडक्शन फंक्शन, अभी मैं आपको बता रही थी कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप शो किया जाता है। इसके दरमियान में रिलेशनशिप शो किया जाता है जो हमारी लेबर्स और हमारा कैपिटल होता है, उनके दरमियान में हम एक रिलेशनशिप शो करते हैं। किसकी बेस पे? हम अपनी इकोनॉमिक इक्वेशंस को देखते हुए। हमारी इकोनॉमिक इक्वेशंस क्या हो सकेंगी? डेफिनेटली अगर हमारा जो इकोनॉमी हमारी अप जा रही है तो हमने अप के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रोडक्शन को सेट करना है। अगर हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रोडक्शन करनी है। जैसे अभी आप लोग एग्जांपल लो कि अब कोविड की वजह से मोस्टली उन्होंने चीजों को वाइंड अप कर दिया। हमारे होटल्स वगैरह को, हमारे जितना भी हमारा ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट तो चलो अपनी रनिंग में चल नहीं रही है ना, जितने भी हमारे प्राइवेट हो गए, हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, हमारे प्राइवेट स्कूल्स हो गए, हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, सभी क्या हो गए, कोविड की वजह से स्टॉप हो गए हैं। अब जैसे अब हम एग्जांपल लें कि होटल्स की एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर उनके पास 50 लोगों का स्टाफ था ना, तो उन्होंने कोविड की वजह, जब उनको पता चला कि अब हमारे यहाँ की रेशियो जो है, उन्होंने बिल्कुल हर चीज को स्टॉप कर दिया गया है। उन्होंने ये भी हमें गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जी यहाँ पे आप लोगों ने सिटिंग नहीं देनी, जस्ट उनको टेक ओवर किया जाएगा। ठीक है, उनका क्या ये सिस्टम हुआ, सब कुछ उन्होंने जो है वो वाइंड अप कर दिया। अगर उनके पास 50% जो है वो एम्प्लॉयज वर्किंग कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने 10 लोगों को हायर कर लिया। किस तरह के 10 लोगों को हायर किया? जिनको उनको पता था कि ये हमसे कम सैलरी ले रहे हैं, ये हमसे कम इनकी डिमांड है, कम जो है हम इनको सैलरी पे कर रहे हैं। जिन लोगों को वो ज्यादा सैलरी पे कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ने, मोस्टली होटल रेस्टोरेंट वगैरह ने क्या किया, लोगों को फ्री कर दिया गया। किस वजह से? क्योंकि उनको एक इकोनॉमिक, वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चला रहे हैं। ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, लास्ट टाइम जो कोविड स्टार्ट, तो मोस्टली फर्म एम्प्लॉयज को इस वजह से कि उनके पास इतनी ना तो कोई इनकी प्रोडक्शन हो रही थी, ना उनकी कोई इतनी सेल हो रही थी, ना वो चीजों बना रहे थे, ना ही वो कस्टमर उन चीजों को बाय कर अकॉर्डिंग चलाने के लिए उन्होंने सारे सेटअप, सारी लेबर, सारा कैपिटल उसके अकॉर्डिंग चला दिया अपना। क्लियर पॉइंट क्लास? ये लास्ट से रिपीट कर दें। तो ये ना यहाँ पे मैम लास्ट से आवाज कट रही थी आपकी। कट रही थी। ये आप लोग अपने माइक ऑफ करो। मैंने उससे भी आपको बताया था कि ये जो जूम है ना, यहाँ पे इतनी क्लियर वॉइस नहीं आती। यहाँ पे जब आप लोग 50+ स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो वॉइस में डिस्टॉर्शन होने लग जाती है। मैं जैसा अभी आपको बता रही थी कि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या करते हो आप, प्रोडक्शन फंक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस सेट करते हो। हमें आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है। आप लोग अपने माइक ऑफ कर दो, शाबाश। आप लोग अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी सिचुएशन को सेट करते हो। कैसे सेट कर सकते हो आप अपनी इकोनॉमी के? जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी कि जैसे हमारा कोविड जो है वो 2020 में स्टार्ट हुआ, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज एरिया थी, हमारे स्कूल्स थे, हमारे प्राइवेट कॉलेजेस थे, हम उनकी एग्जांपल कर लेते हैं। उनके पास अगर 500 के रेंज में, 600 के रेंज में लोग एज अ वर्किंग कर रहे थे, तो उन्होंने वहां से सबको फ्री आउट कर दिया। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को रखा जिनका उनको पता था कि हमसे कम पैकेजेस ले रहे हैं, हम इनको कम सैलरीज पे कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि अगर हम इनको कम सैलरीज पे करके कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप भी चल रहा है, डेफिनेटली एक चीज, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपकी जैसे ही कोविड आया तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कम चीजों को बाय करना शुरू कर दिया। लोगों ने, इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी, इतनी चीजें ही नहीं बन रही थी। लेबर जो हमारा कैपिटल होता है वो हमारी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन होता है। अगर हमारी प्रोडक्शन ही ना होगी, चीजें ही ना बनेगी, तो हमारे पास लेबर और कैपिटल का ज्यादा होना जो है वो वेस्टेबल चीज है।
हमारी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमारे स्कूल्स में या हमारे होटल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, अगर वहां पे चीजें सेल आउट ही नहीं हो रही, चीजें बन ही नहीं रही, तो उन्होंने वहां पे 500 या 1000 के राउंड अबाउट जो है वो लेबर्स को हायर करवा के क्या करवाना है उनसे, क्योंकि उनके पास तो इतना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होना। जब उनकी चीजें ही नहीं बनेगी, उनकी सेल ही नहीं होगी, तो उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी कि वो अपने लेबर्स को पे कर सकें सैलरीज। इस वजह से वो उन लोगों को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, जिनसे वो कम सैलरीज पैकेजेस में अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। प्रोडक्शन वो होती है जिसमें आप अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है, इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चला रहे होते हो, और उसमें आप अपनी लेबर्स को और अपने कैपिटल्स को कंपेयर करते हो। इन दोनों के रिलेशनशिप को कंपेयर करते हुए आप अपनी प्रोडक्शन फंक्शन को सेट करते हो। क्लियर पॉइंट क्लास? Next point, the distribution function means that the fund is distributed around to desire of department. Let's suppose there are 2 or 5 departments is available in the organization. The first one is accounting, the second one is management, the third one is HR department. The different department is available in the firms and different distribution and different responsibilities परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 4 से 5 डिपार्टमेंट जो है वो अवेलेबल है एट अ टाइम। एक जैसे भी लाइक एग्जांपल की है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स है, एचआर डिपार्टमेंट्स है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अपने फाइनेंस की, अपने फंड्स की, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि एक हमारा जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो वेल स्टैब्लिश है, वेल रनिंग है, तो उसके बावजूद हम जो है वो ज्यादा फंडिंग, ज्यादा फाइनेंसिंग जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, और जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो बिलो ऑफ कंपेयर टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो चीजों को हमने डिवाइड करना है या फंड्स को या फाइनेंस को, वो अकॉर्डिंग टू डिजायर करना होता है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हम अभी इधर एग्जांपल कर रहे थे कि जैसे हम लोग एक मोबाइल फोन जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं। अगर मोबाइल फोन में हमारे जो मार्केट में उसकी जो डिजायर है ना, उसकी है कि जी 100 की हमने जो है वो कस्टमर जो है वो चीज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग 200 या 150 की रेंज जो है वो मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारे 50 या 100 की रेंज जो है वो हमारे स्टॉक में जो है वैसे की वैसे ही रह जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं। जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे जितनी हमें जरूरत है और जितनी हमारी डिमांड है। क्लियर पॉइंट क्लास? Accounting functions refer to the income statement, balance sheets to find out the financial position of the business at the end of the accounting period. Let's suppose the organizations, the institutions, the schools, colleges, and so on, etc. The overall the 1st January startup of the business, the overall transaction is recorded in daily basis. After 6 months, after 1 year, the organizations find out the financial of the business, financial of the statement, financial of the positions, financials of the conditions of the organization, like net profit, net loss. Net profit, net loss is find out with the help of the daily basis transactions. The daily basis transactions complete and running in this situation, the overall transactions is recorded in daily basis. Like suppose कि अगर हम लोग अपने बिजनेस, एक अकाउंटिंग फंक्शन है हमारे पास, हमें एक अकाउंटिंग जो है, आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? क्लास अकाउंटिंग पढ़ी हुई है आप लोगों ने? अकाउंटिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है? नो मैम। नो मैम। अकाउंटिंग
फंक्शंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग वो होती है जिसमें आप लोग अपनी डेली बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड करते हो। जैसे लाइक सपोज कि अगर हम लोग एक बिजनेस चला रहे हैं या एक बिजनेस फंड चला रहे हैं, तो हम लोगों ने जितने भी पूरे सुबह से लेके शाम तक जितने भी हमने बिजनेस में चीजों को परचेज किया है, चीजों को सेल किया है, कोई चीज हमने एक्सपेंस लगाया है, कोई रेवेन्यू लगाई है, कोई कैपिटल लगाया है, हमने उनको डेली बेसिस पे अपनी चीजों को रिकॉर्ड करना होता है। अगर हम अपनी डेली बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर लेते हैं, तो इट्स मीन दैट टू इजी वे टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली जो है वो फाइंड आउट। फाइनेंशियल पोजीशन वो होती है जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर आउट कर सकते हैं कि क्या हमने जो पूरी साल में जितनी भी हम लोगों ने ट्रांजेक्शन की हैं, क्या हमारा बिजनेस जो है वो एक वेल डन कंडीशन में जा रहा है या डाउन कंडीशन में जा रहा है। अगर हमारा बिजनेस जो है वो एक वेल डन कंडीशन में जा रहा है, तो हम उसके लिए फर्दर स्टेप्स को अडॉप्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारा बिजनेस डाउन कंडीशन में जा रहा है, तो हमने उसके लिए कोई पॉलिसीज, कोई ऐसे रूल्स, कोई रेगुलेशंस अडॉप्ट करने होते हैं जिससे हम अपने बिजनेस के वीक पॉइंट्स को कवर अप कर सकें। लाइक एग्जांपल आप अपनी कर लो कि अगर आप लोग जो है वो पूरा सेमेस्टर पढ़ते हो, जैसे अभी मैंने आप लोगों को से पूछा और किसी बच्चे को कुछ नहीं पता था, ऐसे ही है ना। वो आप लोगों की बात, वही स्टूडेंट्स की बात कि पूरा सेमेस्टर पढ़ना नहीं है, जब पेपर आना है पेपर से एक दिन पहले बुक्स खोल के बैठ जाना, फिर कह देना लो मैडम तो कुछ पढ़ाती नहीं थी, सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था हमें। ऐसे ही है ना दानिश? कहाँ गया ये? आया क्लास में यार? ये पता नहीं मैम, चेक करता हूँ अभी। फिर ये बात स्टूडेंट्स की होती है कि जी हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था। पढ़ना खुद नहीं है, पढ़ने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आना है तो पता चलना है कि पेपर आने लगे हैं, फिर बुक्स खोल के बैठ जाना है, तो फिर कहना है पता नहीं नंबर क्यों नहीं आ रहे थे। ऐसे ही है ना। ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग फंक्शंस होते हैं। अगर तो आप लोग डेली बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड करोगे, डेली बेसिस पे अपना सारा डाटा जो है वो पुट अप करोगे, तो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इजी हो जाएगा। अगर आप लोग जो है उसको डेली बेसिस पे नहीं कवर अप करोगे, तो आप लोगों के लिए अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का पर्सनल फंक्शन। पर्सनल फंक्शन लाइक the refer to the communicates life experience and emotional of feelings of an individual. For example, the management and managers of the organization to communicate and skill use the overall of the organization's implement। कि जो हमारी पर्सनल जो है वो फंक्शंस में ये होता है कि जो हमारी पर्सनल जो हमारे मैनेजर्स या हमारी मैनेजमेंट है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। किसके साथ शेयर करते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते हैं। आपको भी पता है मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लानिंग करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लीडिंग करना, चीजों को करना। हमारे पास मैनेजमेंट ना हो, अगर हमें मैनेजमेंट कम्युनिकेट ना करे, हमें कोई बेस ना बताए, कोई ट्रिक्स ना बताए, तो हम लोग जो है वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्लियरली जो है हम एक बेटर वे में नहीं कवर अप कर सकते। जैसे हम अपनी एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि हम कुछ मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो है ना वो लमसम ऑफ द सोर्स ऑफ मनी होता है, बट उनको समझ नहीं आ रही होती वो कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे उसको वो यूटिलाइज करें। क्यों 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 नहीं समझ आ रही होती? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती, उनके पास नॉलेज नहीं होता, उनके पास एबिलिटीज नहीं होती। बट जो हमारा पर्सनल फंक्शन है, पर्सनल फंक्शन में हम लोग जो है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर करते हैं इंडिविजुअल बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन। आरडी का मतलब होता है, आर एंड डी का स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन include activities that company undertake to innovate and introduce new products and services, the first stage of the company in the development process. For example, the new
acquisitions, new technologies, new development, implementations of the company, daily basis, after 6 months, after 1 year, with the help of the research and development process. सेम लाइक हम एग्जांपल कर लें कि अगर जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी कि अगर हम लोग जो है वो मोबाइल फोन लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो अगर हम लोग मोबाइल फोन लॉन्च करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों ने पहले मार्केट को विजिट करना है कि मार्केट में क्या जो है वो कंडीशन चल रही है, क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या रेगुलेशन चल रहे हैं। अगर हमारे मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हम उनको एनालिसिस कर लेंगे, मार्केट को विजिट कर लेंगे, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट हम उनको विजिट कर लेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो नॉलेज गेन हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि अगर हम लोग एक मोबाइल फोन पहले मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं, क्या फीचर्स हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, क्या कस्टमर उनकी डिमांड है, क्या वो क्या चाहता है कस्टमर की, कितनी किसकी जो है वो प्राइसेस होनी चाहिए, क्या क्या इस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स होने चाहिए। आपको भी पता है कि मार्केट में तब चीजों की सेल आउट होती है जब अकॉर्डिंग टू कस्टमर जो है वो बनाई जाए चीजें। अगर आप कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज नहीं बनाते, जैसे आप अपनी एग्जांपल कर लो, आप मार्केट में विजिट करते हो तो आपको पता होता है कि किस शॉप पे मेरी जो है डिमांड जो है वो पूरी हो जानी है, मैं जो चीज चाह रहा हूँ मुझे उस शॉप से जाके मिल जानी है। ऐसे ही मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि आप लोगों ने चीजों को रिसर्च की, पहले आपकी सर्च होती है, देन आप रिसर्च करते हो। जब आप लोग अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को एक प्रॉपर जो है वो फॉर्म में लेके आते हो, प्रॉपर फॉर्म में ला के आप अपनी चीज को डेवलप करते हो, मार्केट में सेल आउट करते हो। जैसे हम लास्ट में स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं, चीजों की परचेज होती है, प्रोडक्शन होती है, अकाउंटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो लास्ट पे जाके जितना भी हम प्रोसेस करके आए हैं ना, उन सब को हमें डेवलप करना होता है। आपको भी पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि उनकी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो सेल आउट हो, उनकी डेवलपमेंट हो, उनको प्रॉफिट ज्यादा हो। ऐसे ही है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का यही टीम होता है। और आप लोगों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब होगी जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी अपनी प्लानिंग्स को लेके चलोगे और चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे और चीजों को बेटर वे में लेके चलोगे और चीजों के ऊपर फोकस करोगे। That's a clear point, class. Any question, class? लास्ट पॉइंट क्या कह रही हो? मैम मैम जी जी बोलो, कौन बोल रहा है? कर देती हूँ। और कौन बोल रहा था यहाँ पे? बिलाल यस सर ये कह रही कौन थी है? पर्सनल फंक्शन भी रिपीट करने एक बार। 6342 कौन है? 6340 कौन है? नहीं, 6342 कौन है? बिलाल सर कौन है? जी मैम। 6394 कौन है? बिलाल क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चे? मैम पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन पढ़ रहे थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन पढ़ा है। अब यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन होते हैं। Functions refer to the activities that company undertake to innovate and introduce new product services. First stage of the company is to the development process. For example, research and development of the company. कि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है ना, वो आप लोगों की कंपनी तब, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दी कि अगर आप लोग कोई जो है ना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि हम एक शैम्पू बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारी जो कंपनी है ना वो एक शैम्पू
को लॉन्च करना चाह रही है, उससे पहले मार्केट को जहाँ पे चीजें सेल आउट होती हैं, जहाँ पे लोग जो है इस चीज को बाय करते हैं, वहां पे जाके चीजों का विजिट किया। जब उसने मार्केट में जाके चीजों का विजिट किया, उसने 2 4 8 10 चीजें देखी, उसने देखा कि कस्टमर जो है ना वो किस चीज से ज्यादा सेटिस्फाइड है। कस्टमर जो मार्केट में उस प्रोडक्ट की, सिर्फ एक तो नहीं कंपनी शैम्पू बना रही, हजारों कंपनीज जो है वो शैम्पू की प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। फिर उसने देखा कि कस्टमर जो है वो कितनी प्राइस वाली प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारी पहले चीजों की रिसर्च होती है। जब मार्केट में एनालिसिस करते हैं वो हम सर्चिंग कर रहे होते हैं। जब हम चीज को सर्च करके चीज को एक पूरा जो है वो फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारी जो है वो रिसर्च बन जाती है। जब हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है तो डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन का थीम होता है कि उसकी प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल आउट हो, उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, कस्टमर उसकी चीज को ज्यादा लाइक करे। उसकी चीज को ज्यादा लाइक करेगा तो डेफिनेटली परचेजिंग पावर भी लोगों की जो है वो ज्यादा होगी। ज्यादा परचेजिंग पावर होगी तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट कि नहीं अभी हुआ? यस मैम, क्लियर है। अहमद माइक ऑफ करो बच्चे अपना। अब एक बच्ची पूछ रही थी कि मैडम पर्सनल फंक्शंस में क्या होता है। पर्सनल फंक्शंस में जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट या मैनेजर्स होते हैं, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को इंडिविजुअल बेस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे लाइक सपोज करो कि अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों ने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा हुआ। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने ये वाली स्लाइड्स करनी है या ये वाला आप लोगों का सिलेबस है, यहाँ यहाँ से आप लोगों ने चीजों को करना है, तो अगेन आप लोगों को पता चलेगा। अदरवाइज आप लोग तो यूज टू ही नहीं हो, आप लोग अनटच हो इस चीज से। इसी तरह आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जो आपके मैनेजमेंट और मैनेजर्स होते हैं वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अपनी इमोशनल फीलिंग्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं और इंडिविजुअल बेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। किस वजह से इम्प्लीमेंट, अगर मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दी है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी मैनेजमेंट ना हो, कोई प्लानिंग प्रोसेस ना हो, कोई चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाला हो ना हो, चीजों को कोई लीड करने वाला ना हो, चीजों को कोई कंट्रोल ना करने वाला हो, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक 0 पॉइंट पे है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का थीम क्या होता है कि हम लोगों ने अपने आप को वेल स्टैब्लिश करना है, हम लोगों ने अपने आप को वेल डिवेल्प करना है। और वेल डिवेल्प आप तभी कर सकोगे जब आपके पास जो है वो एक पावरफुल स्किल्स होंगी, पावरफुल एबिलिटीज होंगी, पावरफुल नॉलेज होगा। और वहां पे जो आप लोगों का पर्सनल फंक्शन होता है, पर्सनल फंक्शन का में आप लोग, हर पर्सन जो है इंडिविजुअल बेस पे कम्युनिकेट करता है, अपने व्यूज देता है, अपने व्यूज की बेस पे उनकी प्लानिंग होती है। क्लियर है क्लास? यस मैम, क्लियर है। Yes, ma'am. क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन क्लास? जी मैम, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का बता दें। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का बता दो। अभी मैंने जैसे आप लोगों को ये जी बात बताई कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कि distribution refer to the funds is distribute according to the desire of the department. Let's suppose कि अगर हमारे पास जो है एक, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि जी हम लोग एक, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है कि जी हमारे पास जो है ना, हम एक शैम्पू बनाने वाले, हमने शैम्पू को नाम दे दिया है कि जी हम सनसिल्क शैम्पू बना रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं सेल आउट हो रहा, बाहर के ममालिक में भी हमारी लॉन्च होती है। जैसे हम नेस्ले का एग्जांपल ले लें कि नेस्ले अगर हम लोग कंपनी है
तो उनकी सेल आउट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उनकी आउट ऑफ कंट्री में भी उनकी सेल है। अब जब हमने कोई अपनी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चीजों को कोई प्रोडक्शन करनी है, तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डिमांड देखना होता है। अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि हमारा जो फैसलाबाद का सिटी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो हम लोगों ने सिटी बाय सिटी देखना है कि वहां पर कस्टमर कितनी चीजों को जो है वो बाय कर सकता है, हमें कितनी चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, क्या हम लोग कम तो नहीं कर रहे या हम लोग ओवर लीडिंग तो नहीं कर रहे। हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डिमांड और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर हम बहुत ज्यादा ओवर चीजों को जो है वो सप्लाई कर देंगे तो देन हमारा जो है वो नुकसान है। अगर हम बहुत मिनिमाइज चीजों को जो है वो सप्लाई करेंगे तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लॉस है। इसीलिए हम लोगों को अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्लियर है क्लास? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड लो, नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। अब नेक्स्ट है आप लोगों का ये रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर बिजनेस फंक्शन। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकंड आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है? नो मैम। नहीं पढ़ा? पढ़ा है क्लास की नहीं पढ़ा? नो मैम नहीं पढ़ा। नो मैम, ये अभी तक नहीं पढ़ा। चलो मैं आप लोगों को ना आपकी ग्रुप में पिक सेंड कर रही हूँ इनकी, ठीक है, स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इनकी। इनकी पिक सेंड की है, सारे बच्चे उसको जो है ना वो निकाल लो। जी यार इनके साथ बच्चे ये वाली स्लाइड शेयर करो। एक मिनट जी यार पीछे करो बच्चे, ये मुझे नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ जरा, नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ इसी की। आगे करो, शाबाश, ठीक है, आगे करो और आगे करो, ठीक है। अब इन स्लाइड्स को भी स्टॉप करो, जो मैंने आपको सेंड की है उसको निकालो जरा, स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम, मैं एक मिनट करती हूँ। बस ठीक है। अब लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आपके पास जो है वो तीन जो है वो अकाउंटिंग के फंक्शन आए थे। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग था और नेक्स्ट आप लोगों के पास कॉस्ट अकाउंटिंग था। जो आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इज मर्ज एंड देन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट। जब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट आपस में मर्ज होती है तो वो किससे रिलेट करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेट करती है। अब हमने फर्स्ट से देखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। निकालो बस नेक्स्ट करो जी हाँ बच्चे, बस। अब वो कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट मेजर एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। It provides financial statements based on generally accepted accounting principles. The third and last point is its focus is on reporting to external parties. For example, the financial accounting लास्ट स्लाइड में जैसे हम डिस्कस करके आए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द
ईयर या एट द एंड ऑफ द टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट. It is measured with the help of the daily basis transaction of the business. कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अपनी डेली बेसिस पे बिजनेस में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं और फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम लोग को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे सेशन में पूरे साल में जो भी प्रोसेस किया होता है उसके बारे में हमें गाइडलाइन देती है. और जो हमारी फाइनेंशियल, जैसे आप लोगों ने मोस्टली बच्चों को इस चीज का पता भी होगा कि हमारे एवरी जो है वो years after 6 months या after 1 year completions of the process completions of the organization time duration कि हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हर 6 मंथ बाद हर 1 साल के बाद जो है वो ऑडिट किया जाता है. हम जैसे एग्जांपल कर लें कि हमारे बैंक्स हैं या हमारी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह है, उन्होंने हर 6 माह बाद हर साल के बाद जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाना होता है. ऑडिट करवाने से हमको ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट के बिहाफ पे उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा. क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम. जी मैम आ रही है. यस मैम. उन लोगों को अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उन लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना उन लोगों को जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा. इस वजह से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग को ये चीजों की गाइडलाइन देता है कि हमने डेली बेसिस पे चीजों की ट्रांजेक्शन करनी है और स्टेटमेंट को बनाना है. जब स्टेटमेंट बनाओगे तो देन आप लोगों को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में गाइडलाइन मिलेगी. नेक्स्ट वाली स्लाइड करो. नेक्स्ट है कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, थर्ड इज मेकिंग समरीज, फोर्थ इज dealing with financial transactions, interpreting financial information, communicating results, making information more reliable. First one is recording information, same like is the daily basis the transactions is recorded in the organ of the business. The daily information, the daily recorded is available with the help of the financial accounting. The second point is classifications of data. The data is classified is with the help of the ledger. अब आपको यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन जब हम लोग अपने अकाउंट्स को बना लेते हैं ना, डेली बेस पे हम अपनी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर हम लोगों ने डेली जो चीजें रिकॉर्ड की होती हैं, जितनी हमने चीजें ली हैं, जितनी हम लोगों ने चीजें दी हैं, जितने हमने एक्सपेंस लगाए हैं, जितने रेवेन्यू लगाए, फिर हमने उन चीजों को अलग अलग से जो है वो अकाउंट बनाने होते हैं कि अगर परचेज की हैं चीजें तो कितने की हैं, सेल की हैं तो कितने की हैं, एक्सपेंस लगाया तो कितने का लगाया, उसको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मेकिंग समरीज. अब चीजों की समरी, जैसे आप लोग को भी इस चीज की अवेयरनेस है, जैसे आप लोग 9th 10th में भी पढ़ के आए होंगे, जब इंग्लिश में आप लोग कोई स्टोरीज वगैरह लिखते हो तो लास्ट पे आप लोगों से कहा जाता है कि इसका एक मोरल लिख दो, ठीक है, या इसकी कोई एक समरी बना दो, या आप लोग को कोई पैराग्राफ कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो कहा जाता है कि इस पैराग्राफ में से आप लोगों ने एक समरी की फॉर्म में चीजों को प्रेजेंट करना है. इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों ने चीजों को मिनिमाइज करना है. ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ऐसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, उनका ये होता है कि अगर आप लोगों ने पूरा साल जो है वो वर्किंग की है तो आप लोगों ने, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों को जो है ना वो पूरा आप लोगों को सिलेबस पढ़ाया गया है, आप लोगों ने जितना भी पूरा सिलेबस पढ़ा है, आप लोगों ने मिड में पढ़ा या फाइनल में पढ़ा है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों ने पेपर में पूरा सिलेबस लिख के देना है मुझे, या पूरे सिलेबस का मुझे जो है ना वो आप लोगों ने पेपर देना है, तो इट्स अ पॉसिबल पॉइंट? नो मैम. बोलो, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपके पास तो लैक ऑफ टाइम कंज्यूमिंग कि आप लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होना, आप लोगों को एक लिमिटेड सा टाइम दिया जाना है, कहाँ जाना है कि इसके अंदर आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो वाइंड अप करना है, ऐसे ही है ना. तो इसी तरह बिजनेस के अंदर होता है, अगर आप लोग बिजनेस के अंदर अपनी पूरी चीजों को रिकॉर्ड करते हो, पूरी ट्रांजेक्शन करते हो, पूरा प्रोसेस करते हो, तो आप लोगों ने उनकी भी चीजों की समरी बना के आप लोगों ने उसको जो है आगे प्रेजेंट करना होता है.
नेक्स्ट है कि डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। आप लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स तब होंगी जब आप लोग जो है वो डेली बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड करोगे। जब डेली बेसिस पे आप लोगों ने चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होनी। उसके बाद है कि इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके पास जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तब होगी कि इंटरप्रेटिंग क्या होती है, पता है आप लोगों को? इंटरप्रेटिंग क्या होती है? 6394 कौन है? 6394 क्लास 6394 कौन है? अजीब हो, वैसे आप लोग ना, हैरत होती है मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स को देख के कि क्या आप लोगों के हालात है वैसे बेचारों के। मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, फिर बाद में ये बात ना कहना। मैंने आप लोगों को सारा पेपर कॉन्सेप्चुअल देना है, A to Z पेपर आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल पेपर आना है। फिर बैठ के रोते ना कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। 6371 कौन है? यस मैम। 6390 ये मुझे बताओ कि इंटरप्रेटिंग क्या होती है? तशरीह करना मैम किसी चीज की, ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना, कैसे ट्रांसलेट करोगे? बताओ, शाबाश, ठीक बताया कि किसी चीज को ट्रांसलेट करना इंटरप्रेटिंग होती है आपकी। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि आप लोग अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब बना लेते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी तभी बनेंगी ना जब आपके पास डाटा अवेलेबल होगा। जब आपके पास डाटा अवेलेबल होगा तो आप किसी हेड को या ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स को या मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को देन इंटरप्रेट कर सकते हो जब आपके पास ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल जो है वो इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, डाटा ही नहीं होगा, चीजों के बारे में रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो आप चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट है कि कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। डेफिनेटली अभी आप लोगों के पास, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपके पास जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो जाती है, डाटा अवेलेबल हो जाता है, रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोग अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने में भी कन्वीनियंट हो जाती हो। वो अपने रिजल्ट्स को मैम आपकी आवाज बहुत हेलो? कट कट के आ रही है। अब आ रही है आवाज? मैम अभी भी थोड़ी थोड़ी कट रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। अब आ रही है आवाज यार? जी मैम आ रही है। यस मैम। आ रही? अब नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट है कि मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। कहते हैं कि जब आप लोग अपनी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को वाइंड अप कर लेते हो, देन जो है वो आप लोगों को बेनिफिट्स देती है। कैसे बेनिफिट्स दे सकती है कि हम लोगों को अपने रिजल्ट प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा जो है वो कन्वीनियंट हो जाता है। अगर हम लोगों से कोई पूछा जाए कि आप लोग के बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको क्लियरली जो है वो शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे कि ये हमें प्रॉफिट हुआ है, ये हमें लॉस हुआ है, इतना टैक्स जो है वो हम लोग को बेयर करना पड़ेगा। ये इसके फाइनेंशियल जो है वो अकाउंटिंग के स्कोप्स है। नेक्स्ट वाला पॉइंट करो, नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर बोथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड
It measures and reports financial and non-financial data. The process of the accounting is complete with the help of the management accounting and financial accounting. For example, the cost accounting refer to the प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिटी, प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी। जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हम लोगों को कॉस्ट के बारे में अवेयर करती है। कौन सी कॉस्ट? जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, हमें ये बताती है कि जो हमारी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, हमारी अगर क्वालिटी और क्वांटिटी इस तरह की है तो हमें इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कर लेना चाहिए कि हम लोग जो है वो मार्केट में लो क्वालिटी लो क्वांटिटी के हिसाब से चीज को सेल करें और किसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा अप रख के बैठे हुए हैं। हम लोगों को ऐसी जो है वो प्राइसेस सेट करनी चाहिए, ऐसी हम लोगों को कॉस्ट सेट करनी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हो। और ये all the process is complete with the help of both management accounting and financial accounting. That's a clear point, class? Yes, ma'am. The next slide is moved. Next, scope of cost accounting: analysis and assessment of cost, presentation of cost for cost reductions and cost control, planning, accumulation and utilization of cost data, preparations of the budget and implementation of budgetary control. The sixth point is asserting profitability of each product. The seventh point is providing useful data to the management for taking decisions. अब वो कहते हैं कि जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोगों को क्या बताती है कि हम लोग जो है हम लोगों ने कैसे चीजों को प्रोडक्शन करनी है, कैसे चीजों को प्लान करना है, कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, कैसे चीजों की प्राइस जो है वो सेट करनी है। द प्राइस इज सेट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, कि जो हमारी प्राइस जो है वो सेट होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। अब जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट प्रोसेस इज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो हमारा कॉस्ट प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट होता है प्रोडक्ट के बेस पे, कि प्रोडक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, की जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी है ना वो किस तरह की है। अगर हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी है तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को सेट करना होता है। अगर हमारी नॉर्मली चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रोडक्ट की कॉस्ट को सेट करना होता है। अब जैसे आप लोग सपोज करो कि अगर हम लोग जैसे अभी एक एग्जांपल कर रहे थे कि हम लोग जो है वो एक शैम्पू बना रहे हैं, हमारी जो क्वालिटी और क्वांटिटी हमने उसके अंदर जो है वो एक अच्छी जो है वो सेट की है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेट की है। आपको भी पता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, हम लोग हैं, पब्लिक हैं, हम ये चाहते हैं कि जी हमें अच्छी चीज मिले। हम किस चीज को प्रेफर करते हैं कि जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी हो, हम उस चीजों को प्रेफर करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने वही वाली चीजें बनानी होती हैं जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड हो, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसको सेट करना होता है। नेक्स्ट वाला स्लाइड करो। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट मेजर्स एंड रिपोर्ट्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल that helps managers making decision to fulfill the goals of the organization. The management is help out the organizations to perform the abilities, knowledge and skills. कि आपकी जो मैनेजमेंट होती है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने नॉलेज को, अपनी एबिलिटीज को और अपनी स्किल्स को शेयर करती है। जब वो अपने नॉलेज स्किल्स को शेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को उनके गोल्स अचीव होते हैं। गोल्स किस तरह अचीव होंगी कि उनकी प्लानिंग जो है वो एक बेटर वे में होगी, जो चीज वो बनाना चाह रही है उनकी वही वाली चीज जो है वो बन रही है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, उनको उनके गोल्स अचीव हो रहे हैं। डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। उन्होंने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर वे में ले
चलते हुए अपनी रिपोर्ट्स उन्होंने जब रेडी की है तो वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों अकॉर्डिंग के जो है वो उनको डाटा प्रोवाइड कर रही है। ये सिचुएशन में प्रोवाइड कर रही है, हम उनको उनकी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? क्लास क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट स्लाइड करो मानो। अब नेक्स्ट है कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कॉस्ट अकाउंटिंग, control procedure and methods, financial accounting, internal audit, budgeting and forecasting, tax accounting, inventory control, office services. The last point is reporting to management. The first one is financial accounting. We are deeply discussed in the last slides of financial accounting. Interpretations of data is already discussed. Cost accounting is already discussed. The control procedure and method is already discussed in last slides. Financial management भी discussed. अब हमारे पास है कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास बैंक वगैरह है, सींगाई बैंक की एग्जांपल कर लेते हैं कि इंटरनल ऑडिट करना है उन्हें। दो तरह का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट होता है कि इंटरनल ऑडिट होता है और एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट में आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं। ऑडिट किस वजह से किया जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस को चेक आउट करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, उसकी बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं। ठीक है, ऑडिट करने से हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर हमें प्रॉफिट जो है वो इतना हो रहा है तो हमने टैक्स कितना पे करना है। ठीक है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है तो फिर हमने टैक्स पे नहीं करना। इसी वजह से जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को कम शो करवाती है। किस वजह से कम शो करवाती है? बजटिंग एंड फोरकास्टिंग होता है जिसमें आप फ्यूचर प्लानिंग करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट बना रही है तो उसका थीम ये भी होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बना रही है वो जस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू करंट ईयर जो है उसको रेडी कर रही है। अगर उसने अपने आप को मार्केट में लेके आना है, अपने आप को सेट करना है, डेवलपमेंट करना है, तो एक दफा उसने करंट ईयर में अपने आप को सेट कर लिया और नेक्स्ट फर्दर जाके उनकी जो पॉलिसी है और उनके रूल्स और रेगुलेशन है, उनकी कंडीशन है वो डाउन हो गई। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके ऑडिट के बेस पे ही आप लोग के टैक्स जो है वो सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या करोगे आप चीजों को, जब आप लोगों की चीजें जो है वो एक डाउन कंडीशन में जाने लगी जाएंगी, फीडबैक आप लोगों को प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो आप लोगों ने इन चीजों को कंट्रोल करना है। ऑफिस सर्विसेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, आप लोगों की मैनेजमेंट को ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, कौन से सेटअप हो रहे हैं, कौन से वीक पॉइंट है, कौन से प्लान होने चाहिए और कैसे इनको कवर अप करना चाहिए। दैट्स अ क्लियर पॉइंट क्लास। मैम ये फोरकास्टिंग Yes, बजटिंग ma'am. वाला एक बार बता दें। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग मैंने भी आपको बताया कि अगर आप लोग सोच करो बजटिंग क्या होता है। बजटिंग वो होती है जिसमें कि आप लोग को बजट एलोकेट किए जाते हैं, जिसमें आपको फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। अगर लेट्स सपोज करो कि हम यहाँ पे बात कर लें कि हमारे पास 2020 और 2021 है, ठीक है, हमने जो 2020 में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया है तो हमारे पास बजट था, हमारे पास फंड्स थे, तो हम लोगों ने उसको सेट कर लिया। हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो एक्टिविटी थी वो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2020 आया, हमने सिर्फ जो प्लानिंग की हुई थी वो 2020 के लिए की थी। हमने नेक्स्ट जो है वो फर्दर कोई प्लान नहीं किया था कि हमने नेक्स्ट फर्दर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे सेट करेंगे, अगर हमारे ये वीक पॉइंट होंगे या हमें लॉस हो जाएगा तो हम उसको कैसे कवर अप करेंगे। जब ऐसी कोई हम पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम एक बहुत जो है वो पुअर अपनी फर्म को चला रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप लोग करंट ईयर को देखते हुए बजटिंग कर रहे हो, आप फंड्स जो है वो लगा रहे हो,
तो आप लोगों ने फोरकास्टिंग भी करके रखनी है। जैसे ऐसे नहीं कर लेना कि 2020 में आपने फर्म जो है वो चलाई है और सारी प्लानिंग सारी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर दी है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट भी सारा 2020 में ही लगा दिया। आपने 2020 के लिए भी और 2022 के लिए भी 2023 के लिए भी प्लान करके रखना है कि अगर हमें लेट्स सपोज कि कोई हमें लॉस हो जाता है, हम लोगों को हैवी अमाउंट बेयर करना पड़ती है, तो हमने इसको कैसे कवर अप करना है। फोरकास्टिंग होती है जिसमें आप लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हो। क्लियर है क्लास? जी मैम। किसी बच्चे को कोई Yes, क्वेश्चन ma'am. और? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? मैम इन्वेंट्री कंट्रोल कर दे रिपीट। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? जैसे मैंने भी आप लोगों को ये बात बताई, जैसे सपोज करो इन्वेंट्री वो होती है जिसमें आप लोग चीजों की प्रोडक्शन करते हो, चीजों को बनाते हो। अगर आप लोग के पास बहुत ज्यादा, जैसे मैंने भी आप लोगों को लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी कि अगर हमें 100 चीजों की रिक्वायरमेंट है, 100 चीजों की नीड है, तो अगर हम 120 बना लेंगे या 150 बना लेंगे तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीजें बनाई है वो हमारी वेस्टेबल है। हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डिमांड हम लोगों ने चीजों की इन्वेंट्री करनी होती है, चीजों की प्रोडक्शन करनी होती है। अगर हम लोग जो है वो ज्यादा कर लेंगे तो इसका मतलब है हम अपने आप को लॉस की तरफ लेके चल रहे हैं। इसी वजह से हम लोग को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और हम लोगों को वो वाली चीजें बनानी चाहिए जो हमारे लिए यूजेबल है, उसको इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। ओके मैम। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? दिया नेक्स्ट करो बच्चे। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस आ जाता है। ये आप लोगों ने देख लेना है इसको। मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा दिया और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ा दिया। ठीक है, Okay, ma'am. नेक्स्ट करो या नेक्स्ट करो स्लाइड। बस ये लास्ट पे आप लोगों की इनकम स्टेटमेंट, ये वाली स्लाइड्स नहीं करनी है आप लोगों ने, बस वो डिफरेंस तक ही करनी है। अब वो पीछे आ जाओ, जो आप लोगों का लास्ट वाला लेक्चर ओपन किया हुआ था वो निकालो। अब हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ये बात बता दी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सारा हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट उसने आप लोगों को ये भी बात की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो डिसीजंस पे बेस करती है, फाइनेंसिंग पे, इन्वेस्टिंग पे और डिविडेंड पे। जैसे आप लोगों को याद हो कि जब आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसके 3 कीज होती है, 3 उसके जो है वो पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो बेस कर रही होती है। डिसीजंस होता है, फाइनेंसिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है और डिविडेंड होता है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो दिया। अब नेक्स्ट है आप लोगों का कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोगों ने वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया है ना, उसके आप लोगों ने स्कोप्स भी देख लिए हैं। उसको पढ़ लो या इसको पढ़ लो, दोनों एक ही होंगे। नेक्स्ट वाली करो दिया। अब यहाँ पे देखो उसने कहा कि इंटर रिलेशन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजन। जैसे आप लोगों को याद हो कि एक बच्चा था, उसने मुझसे मैडम ये क्वेश्चन किया कि मैडम आपने तो हमें इसके जो है वो 3 पॉइंट्स बताए थे क्लास में कि इसके 4 कीज ऑफ पॉइंट्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे वही वाली बात आती है
कि आपके पास फाइनेंशियल डिसीजंस आते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बात बताई कि अगर आप लोगों ने कोई भी जो है वो बिजनेस को सेट करना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप लेना है, तो आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आप अपने बिजनेस को नहीं सेट कर सकते, नहीं डिसीजन कर सकते। फिर नेक्स्ट आप स्टेप आ जाता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं फाइनेंस भी तो करना है ना, कहीं ना कहीं इसको सेट भी तो करना है ना, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसको यूटिलाइज भी करना है। नेक्स्ट है कि जब आप लोगों ने इसको फाइनेंस कर दिया तो डेफिनेटली आप लोगों ने उससे बेनिफिट भी लेना है, मुनाफा भी लेना है, जिसको उसने डिविडेंड का नाम दे दिया। ये सारे स्टेप्स आप लोगों के तीनों जो आपस में इंटर रिलेट करते हैं, आपस में इंटरलिंक होता है, देन जो है वो आप लोगों का फाइनेंशियल डिसीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो जी आप। अब यहाँ पे भी वही वाली बात बताई हुई है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट उसने पॉइंट किया हुआ है कि एनालिसिस किया जाता है रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप का टू अचीव द गोल्स ऑफ विद वेल्थ इज मैक्सिमाइजेशन। कि आप लोगों ने अपने रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि अभी जैसे हम बात करके आए हैं 2020 की और 2021 की बात करके आए हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो हमने 2015 में सेट की है। क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। 6391 कौन है? यस मैम। कहाँ से पढ़े हम लोग? हम फाइनेंस के मुताबिक पढ़ रहे हैं। पहले हमने कॉस्ट फाइनेंस वो कुछ पढ़ा और अब हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये किस चीज से कंसर्न कर रहा है वो सब कुछ। अली रजा कौन है? अली रजा कौन है? यस मैम। अली रजा शाबाश। ये मुझे बताओ कि रिस्क को कैसे डिफाइन करोगे आप? रिस्क क्या होता है आपका? मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? क्यों कट रही है? यस मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मैम आ रही है लेकिन कट रही है। जब आप लोग अपने माइक ऑन करते हो ना तो इस वजह से वॉइस में डिस्टॉर्शन होने लग जाती है। और वैसे भी ये जो जूम ऐप है ना, यहाँ में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है। चलो बताओ शाबाश कि हम लोग कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अभी? मैम इंटर रिलेशन एंड फाइनेंस डिसीजन भी डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि रिस्क किस चीज को कहते हो आप? रिस्क क्या होता है? क्या मैम? रिस्क क्या होता है? रिस्क रिस्क जी मैम ये होता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये पहले पता नहीं होता कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप ये रिस्क ले लेते हैं तो फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर आप अगर आपकी प्लानिंग वगैरह अच्छी होगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी ना हो तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। ये रिस्क होता है मैम। ठीक है। अब यहाँ पे आपका पॉइंट है कि रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने फीस जमा करवा दी तो आप लोगों ने पहली बात सेट नहीं थी। आपको ये था कि हम सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। जब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आता है तो मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सप्लीज आ जाती हैं। उनके लिए क्या था, उनको पता भी होता है कि जी हम लोग जो है ना वो पता नहीं इसको कवर अप कर पाएंगे या नहीं कवर अप कर पाएंगे। वो रिस्क के तौर पे अपने एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, जब उनका एट द एंड ऑफ सेमेस्टर होता है तो उनको जाहिर सी बात है अगर तो उनका क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियर होता तो वो उनके लिए एक रिस्क होता है जिसके लिए उन्होंने एक चांस लिया होता है। वो चांस जो है वो कवर अप करते हैं। फिर अगर तो ऐसे ही हम ऐसी एग्जाम्पल कर लें, जैसे अभी ये बच्चा कह रहा है कि मैडम हम जब कोई भी यानी कि काम शुरू करते हैं तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट लगा लेते हैं।
हम जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें प्रॉफिट होना है या हमें लॉस होना है। हम एक चांस पे, एक रिस्क पे अपना एक बिजनेस जो है वो चला रहे होते हैं। अगर तो हमें प्रॉफिट होता है तो वो हमारे गोल्स हैं, वो हम अचीव कर रहे हैं। होता है तो हमने उसको जो है वो कवर अप करना होता है। उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी होती है, कोई हम लोगों ने कोई रूल्स बनाने होते हैं, कोई सेटलमेंट करनी होती है जिसकी वजह से हमारा जो सारा सेटअप है ना वो कंट्रोल हो जाए, कवर अप हो जाए। दैट्स अ क्लियर पॉइंट क्लास। क्लियर है बच्चे? जी मैम। यस मैम। स्लाइड करो जी, नेक्स्ट स्लाइड करो जी यार। नेक्स्ट जो है यही वाली बात आ रही है आप लोगों के पास, वही वाला कि आप जो पीछे डिस्कस करके आए हो कि कैसे कैसे चीजों का फीडबैक होता है, ये सारा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वाली स्लाइड निकालो इससे। अब नेक्स्ट है कि आप लोगों का फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, acquisitions of funds, investments of funds, helping in valuation decisions, maintaining proper liquidity. The first point is financial forecasting and planning. You know that very well. Your financial forecasting, the initial part, the startup point of the organization is the planning. The planning is based, the well and good is the forecasting is developed. कि जब हमारा फाइनेंशियल पॉइंट जो है वो एक हमारी प्लानिंग सिस्टम एक अच्छा होगा तो हमारी फोरकास्टिंग भी अच्छी होगी। अगर हमारे पास जो है वो फोरकास्टिंग जो है, हमारा प्लानिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारी जो है फोरकास्टिंग भी वो अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है ना हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ फंड्स होते हैं। एक्विजिशन कहते हो आप लोग किसी मकसद के लिए, ठीक है। अगर आप लोग जो कोई भी यानी कि अपने फंड्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो आप लोगों का कोई थीम होना चाहिए। जैसे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स है कि अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई आप लोग जो है कहीं अपनी मनी को यूटिलाइज करना चाह रहे हो, मनी को इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप लोगों का कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए, कोई थीम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप लोगों के डिसीजन मेकिंग जो है वो फाइनेंस मैनेजर आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं आपके डिसीजन मेकर्स में। आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे आपको बेनिफिट्स ज्यादा होंगे, कहाँ पे आप लोगों को लॉस होगा और कैसे आप लोगों ने अपने पॉइंट्स को कवर अप करना है। लास्ट पॉइंट है प्रॉपर लिक्विडिटी कहते हो कि जो फौरन से आप लोगों को जो है ना वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैसे? जैसे सपोज करो कि अगर हम लोग अपने पास कोई गोल्ड वगैरह सेव करके रख लेते हैं, जैसे ही गोल्ड की प्राइस अप होती है, जैसे आप लोग अपनी करंट एग्जांपल ले लो। आवाज आ रही है क्लास आप लोगों को? यस मैम। जैसे आप लोग अपनी प्रॉपर जो है ना करंट एग्जांपल ले लो कि अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी जगह पे, जैसे सेम लाइक हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, अगर हम अपने पास गोल्ड को सेव कर लेते हैं, जैसे कि प्राइसेस अप होती है हम इसको सेल आउट कर देते हैं। ऐसे ही जो आपके फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं कि प्रॉपर जो है वो आप लोगों को चीजों के बारे में अवेयरनेस देते हैं कि आप लोगों ने किन चीजों को अपने पास जो है वो सेव करना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कैश की जरूरत पड़ती है तो आप फौरन से उसको सेल आउट करो मार्केट में और आप लोग अपनी डिजायर को कवर अप कर लो। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो जी यहाँ। अब ये लास्ट वाला आप लोग का है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। ये जब आप लोगों की फर्स्ट क्लास हुई थी तो मैंने आपको काफी डिटेल में ये बात बताई भी थी कि आप लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मीटिंग डायरेक्टर होते हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन होती है, उसके बाद आपका फाइनेंस होता है और आप लोगों की सेल्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर आ जाते हैं और ट्रेजर आ जाती हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होता है, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, बजटिंग होती है, प्रॉफिट एनालिसिस होता है, अकाउंटिंग एंड पेरोल होते हैं। नेक्स्ट एडिशनल फंड्स होते हैं, कैश मैनेजमेंट होती है, ऑडिट होती है,
उसके बाद आप लोगों के फंड्स की सिक्योरिटीज होती हैं और आप लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं बैंकर्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के। क्लियर है क्लास ये पॉइंट्स आप लोगों के? किसी बच्चे को कोई इशू है, पॉइंट पूछने वाला है यहाँ पे तो पूछ दो, शाबाश। क्लास बोलो, सो रहे हो? हमना नेट शकील कौन क्लियर है? है। हमना शकील कौन है? यस मैम। हमना क्या पढ़ रहे हैं हम? मैम हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। कोई पॉइंट है आपका यहाँ से पूछने वाला? मैम इसके बस स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, मतलब बस ये माइंड में रखना है, इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी। मैम मेरा मतलब कि इसकी थ्योरी भी लिखनी है, इसके एक एक पॉइंट। तो उनका फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो मैंने काफी डिटेल में ये आप लोगों को करवाया था। मैम ये बता दें। क्या बता दो उसका? मुझे नहीं क्लियर हुआ है। मैम ये टॉपिक बता दें, मुझे नहीं क्लियर नहीं हुआ। मुझे क्लियर नहीं हुआ? आप इसको देखो, जो पॉइंट पूछना चाह रहे हो वो मुझसे डिस्कस करो। इसको देखो, शाबाश। आप जो मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हो ना इसमें से, वो मुझसे पूछ लो आप। ओके मैम। उसामा खालिद कौन है? उसामा खालिद कौन है? उसामा खालिद कौन है? उसामा खालिद कोई नहीं है क्लास में? आप लोगों का वैसे फायदा हो गया ऐसे ही है ना ऑनलाइन क्लासेस से, ऐसे ही है। फहद आया है क्लास में? दिया फहद है क्लास में? नो मैम नहीं है। क्लासेस क्यों नहीं लेता है? मैम पता नहीं, वो उसे बताया नहीं, कुछ भी क्लास में नहीं है वो। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, शाबाश। दूसरे सेक्शन की जिया का नाम क्या है? आयजा ईमान। यस मैम। क्लास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोगों का। यार इनकी अटेंडेंस ली है? जिन बच्चों को मैंने कहा था कि नहीं अटेंडेंस लेनी, उनकी नहीं लेनी, बाकी सबकी ले लो। यस मैम, ले लिया उनकी अटेंडेंस। अटेंडेंस ले ली है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई इशू हो? नो मैम। ये आपकी क्लास जो है वो इतनी लेजी क्यों है? एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम इसकी एक बार वर्किंग बता दे सबकी। जैसे अभी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, उन्होंने इनमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस आते हैं। जो आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना फाइनेंस, उनका काम होता है कि उन्होंने प्रोडक्शन करनी है और चीजों को सेल आउट करना है। प्रोडक्शन क्या होती है, हम लास्ट चीजों में भी पढ़ के आए हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन का काम क्या होता है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अपनी लेबर्स को और अपने कैपिटल को सेट करना होता है। जो हमारी सेल होती है,
आपको सेल का भी पता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है, वहाँ पे हर चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ चीजों की प्रोडक्शन करते हैं, कुछ चीजों को परचेज करते हैं, कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ चीजों को सेल आउट करते हैं, कुछ चीजों की मैनेजमेंट करते हैं। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो 2 कैटेगराइज में जो है वो डिवाइड होते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं। और जो हमारी प्रोडक्शन का सिस्टम है ना, वो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोलर करता है, और जो हमारा सेल का है वो हमारा ट्रेजर करता है। अब फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या होता है? आपकी जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है ना, वो हमारी फाइनेंस को कंट्रोल करता है। जैसे लाइक सपोज कि हम ऊपर उसने पॉइंट दिए कि प्रोडक्शन हो रही है, हम सम टाइम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम चीजों की जो चीजें बना रहे हैं, चीजों को रेडी कर रहे हैं, चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो हम फाइनेंस यूटिलाइज करें। हमें इतना यूटिलाइज नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने जो चीजों की क्वालिटी और क्वांटिटी रखी वो एक माइनर शेप में रखी, लेकिन हमने उसके ऊपर एक हैवी जो है वो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करी है। इस वजह से हमारे जो फाइनेंशियल कंट्रोलर होते हैं वो हमें फाइनेंस को कंट्रोल करने के वेज बताते हैं। और जो ट्रेजर होता है उसका काम होता है कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर सेल प्रोसेस होते हैं, जितने भी बिलिंग प्रोसेस होते हैं, जितना भी ओवरऑल जो है वो किसी से कुछ पेमेंट्स लेनी है, कुछ लेनी देनी है, वो ट्रेजर का काम होता है। उसके बाद आपके पास प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाता है, एनुअल रिपोर्ट्स आ जाता है, बजटिंग आ जाता है, प्रॉफिट एनालिसिस आ जाता है, और अकाउंटिंग एंड पेरोल आ जाता है। आपको भी पता है कि अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे वे से चला रहे होंगे, तो हम चीजों को भी बहुत कन्वीनियंट वे से कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए, जैसे हम लास्ट स्लाइड में बहुत डीपली डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा, चीजों को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, अपने पास चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे, तो एनुअल रिपोर्ट्स भी बनाना जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि बजटिंग होनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज करो कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमारे पास डेफिनेटली बजट अवेलेबल होना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कब जो है वो अप कंडीशन में चली जाएगी, कब डाउन कंडीशन में चली जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट एनालिसिस, हमने सारी चीजों को किस वजह से कर रहे हैं, किस वजह से इन सारी चीजें के ऊपर वर्किंग करें, इस वजह से करें कि हमें प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग एंड पेरोल करना है। अभी मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी बता के आई हूँ, अकाउंटिंग आप लोग किस तरह से करते हो चीजों की ट्रांजेक्शन करने के लिए, चीजों को मेंटेन करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेकआउट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का एडिशनल फंड्स होने चाहिए। आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे, देन जो है वो आप लोग अपनी फाइनेंसिंग फंक्शंस को परफॉर्म करोगे। कैश मैनेजमेंट होनी चाहिए आपके पास। अगर एक मैनेजमेंट है तो उनको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कैश है, जितना हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है, हमने इसको कहाँ कहाँ पे सेट करना है, कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत है, हमें कहाँ कहाँ पे कैश को जो है वो लगाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट होना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट ना होगा ना, ऑडिट प्रोसेस ना रखा हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना फ्रॉड हो। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज बताएं और अपने लॉसेस को ज्यादा शो करवाएं। उसके बाद है कि प्रोडक्ट फंड्स एंड सिक्योरिटीज, आप लोगों को अपने फंड्स को प्रोटेक्ट करने की सिक्योरिटीज होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास रिलेशनशिप विद बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। आपके जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनका बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। अगर उनको लोन की जरूरत पड़ती है, सेविंग की जरूरत पड़ती है, तो बैंक के साथ उनका कांटेक्ट होगा तो वो इजीली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कवर अप कर लेंगे। अगर उनका बैंक के साथ कोई लिंक नहीं होगा, अपनी सेविंग नहीं करवाते होंगे, तो अगर उनको लोन की जरूरत पड़ेगी तो इस सिचुएशन में बैंक उनको हेल्प आउट नहीं करेगा। क्लियर पॉइंट? यस मैम। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन क्लास? 4 o'clock ऑफ होनी है। जी मैम।
अहमद बच्चे आपने इनकी अटेंडेंस ली है? यस मैम, इस मीटिंग के स्टार्ट में भी ली थी तो अब भी ले लेता हूँ। नहीं ले ली है, बस ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने? यस मैम। चलो ठीक है। अब आप लोगों ने जब कमिंग क्लास में आना है ना, तो सारे बच्चे एक दफा ध्यान से इस चीज को सुनो कि ये जो दो मैंने आप लोगों को ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों को ये दोनों लेक्चर अच्छे से आने चाहिए। सुन लिए? मैंने सबसे सुनना है, जिस बच्चे ने सुनाना है अटेंडेंस उसकी होनी है, जिसने नहीं सुनाना उसकी अटेंडेंस नहीं होनी।